So now let's start with Yoga Darshana. Yoga Darshana is a type of Astika Darshana and it is derived from the word Yujir Yoge. Propounder is Maharshi Patanjali. Main text is Patanjali Yoga Sutra. Padarthas are 26 in number. It accepts 25 Vimshati Tattva or Panchavimshati Tattva plus Ishvara. Pramana are Pratyaksha, Anumana and Aptopadesha. Again 3. Here it accepts Aptopadesha. Commentator is Vijnana Bhikshu. Importance is given to Ashtanga Yoga. Purvaka Darshana is Sankhya Darshana and Prayojana is Moksha, Kaivalya or salvation in the end. So the definition of yoga is Moksha Sadhaka Upaya, the union of Atma or Paramatma. And also you can write the shlokas as Yogaha Karmasu Kaushalyam, performing karma without any external influence. Yogamiti manyate stiram indriya dharanam, controlling of indriyas from indriya artha. Third shloka is ahityebhyo artebhyo mano nigraha. So manas from indriyartha laukika vishaya. So controlling indriyartha from manas. And the fourth is yogas chitta vritti nirodha. Yoga facilitate and control the manas from objects and provoke to mix with Atma to attain mukti or moksha. So what happens here is आपका जो मनस है ना उसको योग से आप कंट्रोल कर सकते हो और मनस को जब कंट्रोल करोगे ना ऑब्वियसली आपकी इंद्रियाज तुम्हारे कंट्रोल में आ ही जाएंगे. सो व्हाट हैपेंस इज it prevents the union of the desires and your atma, thus it keeps you away from the miseries or any disturbing feelings, thus you can attain moksha through yoga. So there are Ashtanga or eight types of eight Vedas of yoga, and later you are going to study up Ashtanga yoga. So the first is Raja Yoga, second is Hatha Yoga, third is Kundali Yoga, fourth is Mantra Yoga, fifth is Laya Yoga, sixth is Karma Yoga, and seventh is Bhakti Yoga. ऊपर लिखा है मैंने. और these are the seven Vedas of yoga, not eight, sorry. And in Raja Yoga, you are going to study about Ashta Yoga or Ashtanga Yoga, which are Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Dharana and Samadhi. Hatha Yoga में षट कर्म के बारे में पढ़ोगे, which are धौति, वस्ति, नेति, त्राटका, नौली, कपालभाति. कुंडली योग में 10 मुद्रा के बारे में पढ़ोगे, विच आर महामुद्रा, महाबंध, महावेद, केचरी मुद्रा, उद्यान बंध, मूल बंध, जलंधर बंध, विपरीत करिणी, वज्रलोली, शक्ति चालना. And you are going to learn about mantra yoga, and in laya yoga you are going to learn about two types, that is prana and mano laya yoga. In karma yoga there are many karmas, जो भी एक्शंस है ना वो कर्म योग के अंदर आते हैं. और भक्ति योग के 9 टाइप्स है, दैट इज श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चना, वंदन, दास्य, सांख्य, सॉरी शक्य एंड आत्मवेदना. सो आपको ना ये सब के बारे में वरी नहीं करना है. दीज आर डेल्ट इन सेकेंड ईयर इन स्वस्थ वृत्ता, एंड आपको ये टेबल याद रखना है बस. और उसमें भी राजयोग और हठ योग के बारे में ज़्यादा आप लिखना है. और उसमें भी ये जो अष्टांग योग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, और दौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नवली, कपालभाति, इनके बारे में लिख दो, एग्जाम में काफ़ी है. और नाउ लेट्स सी व्हाट इज राजयोग. सो राजयोग में महर्षि कपिल ने 195 सूत्रास एक्सप्लेन किया है, वो भी चार चैप्टर्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट चैप्टर इज समाधि पाद, सेकेंड इज योग साधना पाद, third chapter is Vibhuti Pada, and fourth chapter is Kaivalya Pada. So the aim of again Raja Yoga is to attain moksha, Chitta Vritta Nirodha. The Chitta Vrittas are Pramana, Viparya, false knowledge, Vikalpa, Brahma, delusion, Nidra, which is sleep, and Smriti, recollection of knowledge. These are the Chitta Vrittis, and through Raja Yoga, by following the 8 Ashtanga Yoga, you will become free from the चित्त वृत्ति. एंड देखो अभी जो भी अष्टांग योग है ना उनको प्रैक्टिस, अभ्यास करते, रेगुलर प्रैक्टिस, और आपके डिजायर्स को कंट्रोल में रखते हुए करोगे तो ऑब्वियसली आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा. एंड आप जो भी चित्त वृत्ति है ना उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी. यू विल बी फ्री फ्रॉम चित्त वृत्तिज. एंड
The Ashtanga yogas are yama, niyama, asana, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि. देखो मैंने अच्छे से फ्लो चार्ट बना दिया है, अच्छे से डिवीजन कर दिया है. सो इफ यू राइट द फ्लो चार्ट्स एंड लेटर एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट देम, दैट इज इनफ फॉर योर थ्योरी एग्जाम्स. और अभी देखो, इतना अच्छे से क्लासिफिकेशन कर दिया तो एग्जामिनर को इजी होगा ना, उसको पता चल जाएगा कि आपने लिखा है और आपको पता है ये सब है, इसके डिविजन्स है और इसमें ये सब आता है. फॉर एग्जाम्पल यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ये सब आता है, आपने लिख दिया तो वो आगे पढ़ने के लिए पढ़ेंगे. पर इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है तो ऑब्वियसली आपको थोड़े तो ज़्यादा मार्क्स देंगे ही. तो मेरे वीडियोस में तो मैं नोट्स अच्छे से लिखा हूँ, और आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है वो सब मेरे नोट्स से आपको समझ आ जाएगा. कैसे सब टॉपिक्स लिखने हैं, कैसे हेडिंग्स लिख के उनके अंदर पॉइंट्स कैसे लिखने हैं और फ्लो चार्ट्स कैसे डालने हैं, वो सब समझ आ जाएगा आपको. तो फॉलो करो उतना ही. एंड लेट्स सी नाउ अष्टांग योगा. यम यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आता है. नियम में शौच, संतोष, तपस्या, स्वदय, ईश्वर प्राणिधान, ये पांच आते हैं. आसन में बेंडिंग, मतलब आसन में क्या है, यू आर गोइंग टू बेंड और मोल्ड योर बॉडी इन डिफरेंट पोजिशंस एंड postures so that it influences your body's work और कार्य, और it somehow influences the functioning of your body. प्राणायाम में रेचक, पूर्वक, कुंभक तीन आते हैं. प्रत्याहार में प्रत्याहार का मीनिंग सिंपल है, इट इज रिस्ट्रिक्टिंग इंद्रियास फ्रॉम इंद्रियार्थ. अभी आपके सामने एप्पल है, सो योर बॉडी और योर मनस वांट्स टू ईट द एप्पल, बट यू रिस्ट्रिक्ट योर मनस फ्रॉम ईटिंग इट बाय क्लोजिंग योर आइज. आपको एप्पल दिख रहा है इसलिए आपको खाने का मन हो रहा है. अगर आंख बंद कर लिया तो आपको दिखाएगा नहीं और आप खाओगे, एप्पल खाओगे भी नहीं. तो सिंपल है, it is restricting indriyas from indriyartha. And dhyana is meditation. Dharana is concentration of manas on षट चक्र. फोकस, आपके षट चक्रास जो हैं उन पर आपको फोकस करना है, सो दैट यू कैन ओपन योर विजुअल माइंड, या यू कैन ओपन योर गेट्स. ये सब बताया गया है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे उसके बारे में. और समाधि मतलब यूनियन ऑफ मनस विथ परमात्मा, दैट इज द अल्टीमेट. समाधि मतलब हुआ सब, मोक्ष मिल गया. तो अष्टांग योग में आप सब ये सब पढ़ोगे, और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये सीक्वेंस याद रखो. ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है अभी भी और सेकेंड ईयर में भी इंपॉर्टेंट है. सो यम मीन्स एक्सेप्टिंग गुड क्वालिटीज, नियम मीन्स परफॉर्मिंग हेल्दी एक्टिविटीज, आसन मतलब molding body parts in specific postures for maintenance of health and cure the disease. प्राणायाम restricting breath to purify इंद्रियास, उसमें रेच का मतलब expelling the air out, पूर्व का मतलब taking minimal air in and holding that air for a long time is called कुंभक. ये तीनों भी आते हैं. ऑन टाइप्स ऑफ प्राणायाम सेकेंड ईयर में पढ़ोगे आप, सेकेंड प्रोफेशनल में पढ़ोगे एक्चुअली. प्रत्याहार मतलब कंट्रोलिंग मनस बाय रिस्ट्रिक्टिंग इंद्रियास फ्रॉम देयर अर्थ. अभी जो भी आपको खाने का मन हो रहा है, कहीं घूमने का मन हो रहा है, सो रिस्ट्रिक्टिंग देम, रिस्ट्रिक्टिंग योर डिजायर्स, दैट इज प्रत्याहार. ध्यान मतलब मेडिटेशन. धारण मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग मनस ऑन षट चक्र. समाधि मतलब यूनियन ऑफ मनस, आत्मा एंड आत्म विद परमात्मा. और यहाँ धारण में षट चक्र जो भी है ना, दीज आर एक्सप्लेन इन सेकेंड प्रोफेशनल. सो डोंट वरी अबाउट दोज. लिखो बस, आप क्लासिफिकेशन लिख दो काफ़ी है, और बाकी मैंने आपके लिए दिया है तो वो सब लिख सकते हो. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आप योग में पढ़ोगे, दैट इज अष्ट सिद्धि. अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईश्वत्व एंड वैशित्व. दीज आर द 8 अष्ट सिद्धि. और आपको पता है कि द पर्सन हु अटेन्स अष्ट सिद्धि, ही इज इक्वलेंट टू अ हाई गॉडली पावर, और ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ लॉर्ड. और पुराणों के अनुसार सिर्फ हनुमान जी थे जो जिन्होंने अष्ट सिद्धि को प्राप्त किया था. अनिमा मतलब
to become smaller, to decrease in body size. Mahima matlab to grow bigger in size. Garima matlab to become heavier in weight. Laghima matlab to become lighter in weight. प्राप्ति मतलब जो दूर के जो भी मतलब कैन सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर दूर का जो भी है वो देख सकते हैं, या दे आर दे कैन सी थिंग्स फार अवे. प्रकम्य मतलब who is able to fulfill his own desires. ईश्वत्व मतलब he can transfer his energy from others and he can gain other energy from others. And वैशिष्टव मतलब taking overall controlling capacity. वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मनस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इंद्रियास को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड ही इज एबल टू कंट्रोल वट एवर मिजरीज, वट एवर ट्रबल्स, वट एवर प्रॉब्लम्स दैट ही हैज़ इन हिज लाइफ. सो हनुमान जी भगवान हनुमान थे जो जिन्होंने अष्ट सिद्धि को प्राप्त किया था. दैट इज एंड नेक्स्ट विल सी अबाउट पंचक्लेश थिंग्स टू बी अवे फ्रॉम. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश निवेश. दीज आर द 5 थिंग्स टू बी अवे फ्रॉम. अगेन आपको सिर्फ याद रखना है, सिर्फ लिखना है. यू आर गोइंग टू डील विद दीज इन सेकेंड प्रोफेशनल ऑफ BMS. हठ योगा. हठ योग मतलब क्या वो देखेंगे अभी. सो हठ योगा इज अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग प्राणवायु एंड ब्रिंगिंग समयोग बिटवीन सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी. अगेन सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से बताया गया है सब स्वस्थ वृत्त में. एंड हठ योगा इज यूनियन ऑफ सत्व एंड आत्मा एंड इट इज गिवन इंपॉर्टेंस फॉर अंतः परिमार्जन. सो देर आर अंतः परिमार्जन मतलब क्लेंसिंग योर बॉडी इंटरनली. There are 6 karmas or 6 ways through which you can clean the internal body. धौती, इसमें क्या है ना कि आप कपड़ा लोगे और उसको स्वॉलो करके बाद में उसको बाहर निकालोगे. सो द लेंथ इज 4 इंच 4 इंच लेंथ ऑफ क्लॉथ शुड बी swallowed एंड पुल्ड आउट. वस्ती मतलब मेडिकेटेड एनमा है. नेति मतलब 3 times फोल्डेड थ्रेड dipped in ghee should be inserted in nose and pulled through mouth. देखो थ्रेड को लेना है और उसको घी में डिप करना है. उसको डिप करने के बाद नाक में से अंदर डाल के मुंह में से निकालना है. थ्रू दैट यू जो भी आपके जो पैसेजेस है ना वो सब क्लियर हो जाएंगे या इट विल बी क्लेंस्ड. त्राट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑन माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स अप टू अराइवल ऑफ टीयर्स. एक दिए के सामने बोलते हैं ना त्राटक करो, या जस्ट लुक एट द लाइट ऑफ द दिया और दीपा until tear arrives in your eyes. That is trataka. That is concentration on minute objects. Nauli matlab flexing the flanks by bending shoulders. Kapalabhati means speed breathing exercise. ये योगा में सिखाया जाता है कपालभाति. एंड नाउ लेट्स सी लय योगा. लय योग में 2 टाइप्स आते हैं, प्राणलय एंड मनोलय. प्राणलय should be in ब्रह्मरंध्र एंड मनस should be कन्वर्ज्ड इन आत्मा. ये जो भी है ना सिर्फ याद रखो, सेकेंड ईयर में डील कर लोगे. एंड बेनिफिट्स ऑफ लय योगा: इंद्रिय कर्म रहित्य, स्मृति रहित्य एंड आत्मदर्शन. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ लय योगा. भक्ति योग में आप थ्रू मंत्रास, थ्रू प्रेयर्स, through devotion you are going to worship God and you ask nothing in return. You just worship your desired deity. Karma yoga. So karma matlab karya, and there are innumerable number of karmas, and whatever you do, whatever you perform is considered in karma itself. So karma is inevitable and one must perform duties without selfishness. So karma के कुछ points हैं. It is nitya, which is regular works. Naimittika, causative work. काम्य टू फुलफिल डिजायर्स एंड निषिद्ध रिस्ट्रिक्टेड वर्क्स. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कर्म. नित्य मतलब जो रेगुलर वर्क्स डेली करते हैं. नैमित्य मतलब किसी कारण के लिए करते हैं, या वी हैव सम रीजंस दैट्स व्हाई वी डू नैमित्य कर्म. काम्य मतलब desires and the works that are done to fulfill the desires are काम्य कर्म. निषिद्ध the restricted works, जो भी आपको मना किए गए हैं, that are restricted to do. And again the karma can be divided into 3 types: Shrauta, the Vedic karma; Smrata, the religious karma; and Dharmika, karma of for name and fame. In Bhagavad Gita, all the actions or karma like eating, sleeping, these are all explained under karma itself. All the karyas are such as eating, those all are explained in karma. And again Sanchita,
इसमें ना क्या है ना, जो भी आपके पुनर्जन्म में द लाइफ आप प्रीवियस, जो भी प्रीवियस लाइफ से आपके पाप नहीं हरे ना, जो भी आपके पाप मतलब कम नहीं हुए, दैट बी रिफ्लेक्टेड इन द नेक्स्ट बर्थ। तो वहाँ पर आपको abnormalities या मिजरी या आपके लाइफ में, इवन इफ यू हैव all the things, you don't have peace in your life, or you suffer from any abnormality or any disease or any problem. Such karmas are sanchita karma, prarabdha, performing karma as a result of sanchita karma. अभी देखो, प्रारब्ध कर्म क्या है? अभी पुनर्जन्म में जो भी किया था ना, उसको उसका कर्म आपको नहीं मिला। यू डिडंट सफर द मिजरीज इन द प्रीवियस लाइफ, दैट्स व्हाई दोज मिजरीज आर रिफ्लेक्टिंग इन योर प्रेजेंट लाइफ। एंड टू गेट रिड ऑफ दोज मिजरीज, आपको अभी यज्ञ या कुछ दान धर्म करके आपको उन मिजरीज को दूर करना है। दोज कर्मस आर कंसिडर्ड इन प्रारब्ध एंड क्रियामान। जो भी कर्म प्रारब्ध कर्म के कारण आ रहे हैं ना, वो दैट इज क्रियामान कर्म। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ कर्म। सो मैंने टाइप्स डालना भूल गया हूँ। सो यू कैन राइट टाइप्स ऑफ कर्म। एंड अगेन कर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्रवृत्ति एंड विवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब परफॉर्मिंग कर्म बाय युक्ति विदाउट एनी असेसमेंट, एंड विवृत्ति मतलब लिविंग ऑल टाइप्स ऑफ कर्म बाय रिनाउंसिएशन। छोड़ देते हैं सब, मतलब संत बन जाते हैं या क्या ऋषि बन जाते हैं, या दे जस्ट लीव एवरीथिंग, डे टू डे एक्टिविटी, या वो परिवार को छोड़ देते हैं, वो ज्ञानी या सेंट बन जाते हैं। दैट दोज ऑल रिनाउंसिएशन कर्मस कम्स अंडर विवृत्ति। एंड इन प्रवृत्ति you do karma based on the yukti and assessments, that is pravrutti. So these are the types of karma. So the अभी देखते हैं कुंडली योग मतलब क्या है। कुंडली योग, कुंडलिनी शक्ति present at मूलाधार chakra gets stimulated by regular practice of mudra. This shakti travels through Shushmana, Ida and Pingala Nadi and Shat Chakra and reaches Brahmarandra. ये सब जो भी है ना, सुषमना, ईड, पिंगला नाड़ी एंड षट चक्र, ये सब सेकेंड ईयर के योगा करके एक चैप्टर है, उसमें आते हैं। एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, सिर्फ मेंशन कर दो काफ़ी है। एंड इट्स अ साइन ऑफ आत्म कैवल्य। मंत्र योगा, प्रैक्टिस ऑफ मंत्र अलाउज मन शक्ति एंड अटेन सुपर नेचुरल पावर। So these are the types of yoga, and I have also explained about Ashtanga types of yoga, Ashtanga yoga, about Ashtasiddhi and Panchaklesha, about Shat Karma, types of karma, and about Yoga Darshana. So the similarities between yoga and Ayurveda Darshana. All yoga principles accepted by Ayurveda and practiced under same name, सत्वाजन्य एंड दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। सो जो भी आसना और अष्टांग योग एक्सप्लेन किया है ना, उसको आयुर्वेदा ने एक्सेप्ट करके उसको ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड योगी मीन्स समवन विथ हितायुत सेम प्रिंसिपल्स। एंड आयुर्वेदा गिव्स इंपॉर्टेंस टू प्राणायाम एंड आसना। देखो, अष्टांग योग में भी प्राणायाम, द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, एंड आसनम, द मोल्डिंग एक्सरसाइजेस, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। एंड प्रिंसिपल सच एज कर्मफल, पुनर्जन्म, निद्रा, मनस, आत्म, स्मृति, अभ्यास एक्सेट्रा, दीज कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन्ड by yoga darshana and are accepted by ayurveda and also implemented in चिकित्सा। देखो, दर्शनाज में ना सिंपल जो भी दर्शना में एक्सप्लेन किया गया है, उनके जो भी प्रमाणाज हैं, जो भी गुना है, जो भी पदार्थ हैं, उनको लिखो, उनके बेसिक और हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखो, और लास्ट में ना सिमिलैरिटीज बिटवीन दैट दर्शना एंड आयुर्वेदा लिखना मत भूलो। Don't forget to write the similarities between yoga darshana and ayurveda darshana. Not only this, any darshana and the similarities or the principles accepted by ayurveda. तो अगर इसको लिख दिया ना, तो इट विल बी अ प्रॉपर कंक्लूजन टू योर 10 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो 2-3 पॉइंट तो एक्सप्लेन कर ही दो, दैट इज इनफ। एंड अभी आयुर्वेदा में दर्शना का क्या प्रयोजन है, इसमें ही हाईलाइट हो रहा है ना। तो इफ यू डोंट मेंशन दिस, देन हाउ कैन द एग्जामिनर गेट टू नो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द दर्शनास। सो
दर्शना और आयुर्वेदा के सिमिलैरिटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन लिख दो, काफ़ी है। एंड दिस इज योग दर्शन एंड इम्पॉर्टेंट है। चार इम्पॉर्टेंट है, वैशेषिक, न्याय, सांख्य एंड योग दर्शन। 10 मार्क्स में 10 मार्क्स के लिए एक ना एक तो क्वेश्चन पूछते हैं ही। एंड इफ यू प्रिपेयर दीज वेल, 10 मार्क्स आपके पक्के, या यू कैन कंसिडर 7, 8, 9 मार्क्स तो आपको आ जाएंगे, 10 कोई नहीं देता। सो यू कैन स्कोर। एंड देखो, फ्लो चार्ट्स लिखो, फ्लो चार्ट्स डालो, अच्छे से लिखो, पेपर प्रेजेंटेबल लिखो। और थेरी एग्जाम है, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल्स करो, थेरी में थेरी लिखो, और पढ़ो, अच्छे से पढ़ के रिवीजन करो, मेरे नोट्स भी पढ़ो, एंड मोमेंट पे काम आएंगे, फ्लो चार्ट्स देखो। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू अंडरस्टूड अबाउट योग दर्शना, देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अभी नेक्स्ट वीडियो में पूर्व मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे। सो बी ट्यून्ड एंड थैंक यू।